today at 4:30 as promised. So today we are going to discuss a Korean language and its career prospects in India as well as internationally. And we have our guest, Miss Neha Pathak, who is Korean language specialist at Langma School of Languages. Welcome to the live, Neha. Hello everyone. Hi Priya. How are you? I'm doing great. How are you? I'm great. I'm great. Thank you so much. All right, so we will wait for 2 minutes, let more people join us, and then we will start our live. Can I get a confirmation from the people that we are audible to you, audible and visible to you? Can I get a confirmation message? So I think people haven't joined yet. Let's wait for 2 to 3 more minutes. Sure. Let people take their time as well. Yeah, definitely. All right. Can I get a message, any comment from the viewers? We are not getting any message from the viewers, so let me just check. We'll have to wait for 2 to 3 more minutes. So hi everyone, we are live again today and we are going to discuss Korean language and its career prospects in India as well as internationally. We'll wait for more people to join us and then we will be live shortly. So please give us any comments so that we get a green light to go. All right. So can we get a confirmation? Any message, any comment from the viewers so that we can start? All right. So let's begin it. So Korean language, right? So this language is basically of the country, which is the land of beauty, beauty products, K-pop, pop culture, Korean drama, and of course high-tech cities. So we're going to discuss about Korean language and what are its benefits, what are the benefits of learning Korean language, what are the career prospects if you learn Korean in India as well as across the globe. So I'll welcome Neha again and we will start with Neha. So Neha, when it comes to learning foreign languages, how beneficial is learning Korean language, especially this particular language? And please throw some light on the benefits of learning Korean language plus its career prospects in India and outside India as well. If I talk about the language, first of all, so I will say that if you learn any language, it will be always your advantage. It will never will be your disadvantage. Language is like a sea. It's like a big ocean. आप जितना उसके अंदर जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, it will reveal more secrets to you.
So learning in any language, it will be beneficial. So and now we are talking about the Korean language. As you said कि ये एक बढ़ती हुई हमारी लैंग्वेज है जो आजकल बहुत यूथ के अंदर आप कह सकते हो the new generation they're loving it the language. So the Korean language, yes, on the perspective of the business, as in tourism, travelism, in and as we know the K-pop culture and all music dramas that like very famous entire the Asia and outside the Asia. So it gives you huge benefits. Like we already know कि French, German, Spanish languages, we have big queue of people who are learning these languages. But Korean is like it's something new. Now people are getting more and more interested in this language. It's something new to learn. So वो new attraction जो है वो आपको एक न्यू अट्रैक्शन क्रिएट करता है उसको जानने का लाइक यू आर लर्निंग समथिंग न्यू तो उसकी वजह से आपको ये जो लाइक there are lots of automobile business in India related to the South Korean countries company. तो वहाँ की जो कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करती हैं यहाँ पर है एज वी नो सैमसंग LG Hyundai Lotte these Kia Motors yeah so these companies are here so एग्जैक्टली मैं बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जो आपने मेंशन किया सैमसंग राइट LG सो मोस्ट ऑफ द पीपल उन लोगों को वो भी नहीं होता है कि ये कंपनी साउथ कोरिया की है राइट yes exactly टाइम से हम ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आई थिंक बिफोर 2000 exactly more than that duration. So क्या बिजनेस है कोरिया का यहाँ पर इन इंडिया एंड किस तरीके का ट्रेड प्रोस्पेक्ट है और उसी अगर बिजनेस की बात करें तो किस तरीके के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं जो अभी ग्रोइंग सेक्टर में है फॉर लर्नर्स automobile I will use it as first option of course the automobile companies like जैसे मैंने नेम मेंशन किए the Samsung LG Kia Hyundai तो ये सारी जो है ये automobile companies the technical companies it is very beneficial in the engineer sectors उनके लिए who are working already in these companies because we have Samsung and Kia and all here in India so the people are working over there. So at that time, you deal with those people who doesn't know your own language. But when you, deal with them, so they got more impressed by you. That wow. So like कहते हैं ना कि किसी के दिल तक जाने का राज पेट से होकर जाता है, लेकिन किसी की रूह तक जाने का राज आई गया आप उसकी जबान को जब फॉलो करते हो तो उसके थ्रू होता है. So when you learn something more, ये लैंग्वेज आपको मिलती है तो ये इनको उस सेक्टर में उनको बहुत बेनिफिट मिलता है. स्पेशली ऑटोमोबाइल्स में द इंजीनियर्स जो वहाँ वर्क करते हैं इन कंपनीज में उनका ये बड़ा फैक्टर उनको है और हमें पता है ट्रैवल और टूरिज्म जो है वो हमेशा रहा है और वो उसमें तो है ही लैंग्वेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सो लर्निंग लैंग्वेज इज लाइक वेरी बेनिफिशियल इन दैट फील्ड एज वेल and there are lots of like translator interpreter teaching learning everything is there you can do anything in the language field yeah. So what you mentioned according to that for engineers के लिए एक बहुत ही अच्छा growing option है अगर वो कोरियन लैंग्वेज एक एडिशनल स्किल अपने अंदर ले लेते हैं राइट yes so automobile sector and ऐसे ही नेहा इसी में अगर बात करें इसी को टू टेक फर्दर और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या और ऐसी कौन सी कंपनीज या ऐसे कौन से सेंटर्स हैं जो कोरियन लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं इन इंडिया स्पेशली इन इंडिया Okay, so जैसे already we mentioned Samsung and all. So इन companies के अलावा we have the culture centers, the Korean culture centers here, जो अपनी language के साथ साथ कोरिया के culture को भी promote करते हैं, of course. So बहुत सारी चीजें, the Korean embassy, the Korean culture centers, तो ये सारी चीजें provide करते हैं students को, learners को, not just only students, but उनके पास इस तरीके की स्कॉलरशिप हैं जो कि आपके जॉब और करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रमोट करते हैं आपको ऑप्शंस देते हैं जिससे आप अपने करियर फील्ड में आगे बढ़ सके सो इट
ऑलवेज द बेनिफिशियल टू यू. एंड मैं यहाँ पर उन लोगों को मेंशन करना चाहूंगी who love the K drama, K pop and all these things. तो इन चीजों से वो अपना करियर बना सकते हैं. People require the subtitles to watch dramas, some voice over, because dramas जो हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में उनको वॉइस देकर उनको ब्रॉडकास्ट करते हो. So we already watch lots of Korean dramas in Hindi. So that's Exactly. your dream. People love Korean language because of these dramas and music. Yeah, so you can change it into your career. Your dream, you can change it into your career. Yes, so a very good point made here that I believe that most of the youngsters today, and they are really very interested in K-drama, I'm pop culture. sorry, Priya. You think there's a network issue. I can properly. Okay, Can you okay. hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you. Is it better now? Can you hear me now? Yeah. Yes. 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 So I just said that आपने बहुत अच्छा point mention किया कि जो लोग अभी youngsters हैं के ड्रामा और pop culture में बहुत interested होते हैं. So why not take that interest into your career, right? And आप already अगर एक चीज में interested हैं, so आप career में भी definitely बहुत अच्छा कर पाएंगे. So अगर वहाँ पे career prospects already हैं, bright आपके पास options हैं, so why not follow them? So yes, very good. I think a very good information for the people who are interested in K dramas and pop culture. They should definitely give it a shot. Right. Okay. So नेहा आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, कोरिया और इंडिया का जो रिलेशन है, जो कल्चरल रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है. सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, क्या हमारी हिस्ट्री रही है, और अभी कैसे टाइज हमारे बीच में है, इंडिया और कोरिया के बीच में किस तरीके के टाइज और किस तरीके के एसोसिएशंस अभी है. ओके, सो अगर हमारे कल्चर के बारे में बात करें या हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है या हमारा रिलेशनशिप है जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक दोनों तरीके से है, तो अगर मैं स्टार्ट करूं पॉलिटिकल पॉइंट से, तो अराउंड 1962 ये सारा जो हमारा रिलेशनशिप है ऑन द पॉलिटिकल एंड ऑन द डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हुआ. बट वी शेयर द ब्यूटिफुल एंशियंट हिस्ट्री एज वेल कि हमारी एक अयोध्या की प्रिंसेस सूरी रत्ना, उनकी वेडिंग, उनकी मैरिज कोरिया के एक किंग किम सूरो से हुई थी, जो अराउंड 13th सेंचुरी की ये बात है. उनके कुछ ये स्टोरी सामयुगा रिकॉर्ड्स में है, तो सामगोक्युगा रिकॉर्ड्स में मेंशन है उनकी स्टोरी के बारे में. और जो किम सरनेम के लोग हैं वो उसके आप कह सकते हैं कि उस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. उस लाइक वी कैन से कि वो वंश जो है उसे कारक वंश के नाम से जाना जाता है. एंड किम जो सरनेम के लोग हैं वो अपने आप को उन कारक वंश के मानते हैं, और वो दे थिंक दैट कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ बहुत खूबसूरत है. And that Princess Suriratna, known as the mother queen of the South Korea as well, राजमाता के नाम से उनको जाना जाता था एट दैट टाइम. उनका एक ब्यूटीफुल हमने यहाँ पर स्मारक जो है बना रखा है. साउथ कोरिया में भी है, वहां पर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं. उनके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं. बहुत फेमस एक प्यारी सी स्टोरी है जो हमारे रिलेशन को, हमारी एंशियंट हिस्ट्री को शो करती है. एंड उसके बाद हु डजंट नो द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो उनको कौन नहीं जानता. सो he is a first like Nobel winner holder person he was. And उन्होंने जब उन्होंने अपनी लाइफ में साउथ कोरिया को विजिट किया एट दैट टाइम जब जापान ने उन पर कोरिया के पर रूल किया, तो उन्होंने वहां पर जब विजिट किया तो उन्होंने एक बहुत प्यारी सी उनके बारे में एक पोयम लिखी, दैट इज लैम्प ऑफ ईस्ट. आप सर्च करें, गूगल वगैरह पे देखिए, कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़िए तो आपको वहां पर मिलेगी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि कोरिया एक ऐसे लैम्प की तरह है जो अपनी रोशनी पूरे एशिया पे, पूरे वर्ल्ड पे फैलाने के लिए तैयार है. तो इतनी प्यारी लाइन्स उन्होंने अपने कविता के थ्रू लोगों से कही हैं. साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के, कोरिया के बारे में उन्होंने कहा है. और ये बात सच भी है. और हम देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं वो कितना आगे बढ़ रहा है हर रोज. Correct. And I believe Korea lived up to those words.
कोरिया made those Yes, words. exactly. यस, सो इससे हम लाइक आइडिया लगा सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे कितने दूरदर्शी वो थे, और पहले ही उन्होंने कितनी बड़ी अनाउंसमेंट, कितना बड़ा इंसाइट रख दिया था, जो डेफिनेटली कोरिया ने पूरा किया Exactly. है। राइट, सो एक क्वेरी है नेहा हमारे पास कि कोरियन लैंग्वेज जो है, अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी के फॉरेन लैंग्वेजेस से, तो इसे सीखना कितना इजी है, क्या इसके लेवल्स हैं, कितनी ड्यूरेशन लगेगी इस लैंग्वेज को सीखने में, और किस तरीके के एग्जाम्स यहाँ पर होते हैं? सो आप प्लीज थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। Yes, yes. So, जो कोरियन लैंग्वेज है, अगर हम उसे कंपेयर करें बाकी की एशियन लैंग्वेज से, so I will say it is quite easy to learn. उसको जो समझना है वो बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली फॉर द हिंदी नोअर्स जिन्हें हिंदी लैंग्वेज आती है। सो बिकॉज उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी हिंदी लैंग्वेज की वर्णमाला जिसे हम कहते हैं उनसे बहुत मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव ग, न, द, र, the similar sound, the similar pronunciation in the Hindi alphabets like ka, kha, ga, na, like this, the similar sound, and for the vowels as well, a, ya, e, the similar sounds are there. So usko pronounce karna, it will become very easier to you. So in comparison to the other, if I compare it to the Japanese or the Chinese language, we have to learn lots of script, pictures, and all. But the Korean is just an alphabetic language. तो उसमें आप alphabets पढ़ते हैं, vowels पढ़ते हैं. So that's the all things. तो उसमें बस कुछ एक rules वगैरह हम set up कर देते हैं इसको इस तरीके से बताना है, that's all. बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर्स एंड ऑल आपको उसको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैं लैंग्वेज को लर्न करने के टाइम पीरियड के बारे में बात करूँ तो आई थिंक अराउंड 1 ईयर आपका इस लैंग्वेज को लर्न करने में जाता है, और इसके लेवल्स बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूट होते हैं, लाइक 6 लेवल्स अगर हम फॉलो करें इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस के उनके सेटअप्स को, तो वो 6 लेवल्स के अकॉर्डिंगली बेसिक के अंदर 2 लेवल्स, इंटरमीडिएट 2 लेवल्स एंड एडवांस लेवल 2 लेवल्स आर देयर। तो इस तरीके से वो लोग लैंग्वेज को करते हैं। And if I talk about the exam related to the Korean language, we have the topic exam, test of proficiency in Korean, जिसे कोरियन में 한국어 능력시 हम कहते हैं। तो इस एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो 2 years की है, और ये आपकी सिर्फ एशिया में ही नहीं, आउट ऑफ एशिया फॉर द नॉन कोरियन उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं आपके करियर में ये एग्जाम जो है। तो टॉपिक एग्जाम इट इज वेरी बेनिफिशियल। Great. So, as discussed, I think for people who are already good at Hindi, जो लोग हिंदी में ऑलरेडी अच्छे हैं, उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है कोरियन को जल्दी सीखना, बिकॉज जैसा आपने बताया कि हिंदी से रिलेट करती है, सो वो लोग रेजोनेट कर सकते हैं इजीली कोरियन के साथ, राइट? Okay, that's great. So for Hindi learners, people who are really Hindi lovers, you should definitely go for Korean learning, because right now, as we know, this is the pandemic. अभी situation बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हम लोगों को घर पे ही रहना है। We have to stay at home, stay safe. तो इस टाइम पे आप लोग बिल्कुल कुछ ऐसा कर सकते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, which I think will be great if you go for foreign language learning, right? So अगर हम लर्निंग की बात करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग की, सो नेहा आप कुछ रिसोर्सेज हमें बताइए जो पीपल फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं है, दे डोंट नो अबाउट द राइट रिसोर्सेज कि अगर उन्हें एक न्यू ऑलटुगेदर न्यू लैंग्वेज लर्न करनी है, सो व्हाट शुड दे फॉलो। और ये हमारे पास एक बहुत कॉमन क्वेरी भी है, सो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या रिसोर्सेज उनको फॉलो करने चाहिए। Yes. So, learning for any language, of course, we have lots of institutes, colleges, universities are there who are providing the courses to you. Culture centers, embassies, they have it. So, usko jo learn karna hai, I think first of all, you need a proper guide जो आपको language के बारे में explain कर सके, हर चीज के बारे में explain कर सके, आपकी जितनी भी queries हैं उनको ले सके और आपको answers दे सके। तो first of course, and the material
जो जिनसे आप बुक्स वगैरह आप जो भी रीड करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, तो वो राइट बुक्स आपके पास हो जिनसे आप समझ सके, बिकॉज यू नो समटाइम्स वी जस्ट प्रोवाइड द एडवांस लेवल दे दिया, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, तो how will Right. a student can pick up in the language? And you should follow the, like, there are lots of YouTube tutorials, videos, and बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उनको भी समझने के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज की होनी चाहिए रिक्वायरमेंट। आई गेस आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अवेलेबल है, स्पेशली रिगार्डिंग टू द इंस्टीट्यूट, एंड ऑफ कोर्स आई विल मेंशन द लैंग्वेज नेम हियर, क्योंकि लैंग्वेज हर तरीके की वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको जिसकी एक स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती है स्टडी करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, कुछ भी समझने के रिगार्डिंग। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द कोरियन लैंग्वेज, बट एवरी लैंग्वेज इज देयर अवेलेबल। तो आप हम सिर्फ जो लैंग्मा है वो सिर्फ एक आजकल बहुत ट्रेंड में है कि प्री रिकॉर्डेड सेशंस दे दिए और दे दिया उनको स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए, बट उससे आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो दैट्स द थिंग कि यहाँ पर बहुत इशू हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप लाइव ऑप्शंस के लिए जाए, जैसे कि आजकल की सिचुएशन है, तो लाइव क्लासेस दे आर प्रोवाइडिंग, सो लैंग्मा इज सच अ ग्रेट ऑप्शन टू लर्न एनी लैंग्वेज। एग्जैक्टली। सो आप बिल्कुल भी प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स के लिए ना जाएं अगर आप लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए लैंग्वेज लर्निंग एक पूरे प्रोसेस होता है जहां आपको चाहिए कि आपके सामने एक मेंटर या एक एनवायरनमेंट प्रेजेंट हो जहाँ पे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो प्रोसेस है लर्निंग का वो टू वे बन सके, इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन जो है मेन एलिमेंट्स लैंग्वेज लर्निंग के वो फैसिलिटेट हो पाए, और वो प्री रिकॉर्डेड सेशंस में बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। So you should definitely go for live trainings. And as Neha mentioned, we have a lot of institutes for foreign language learning. But if it comes to the choice of people, so yes, we will go for Langma. Langma is definitely one institution that is currently providing online live interactive training. So keeping in mind the current situation, जो अभी पैंडमिक का सिचुएशन है उसको देखते हुए अभी बहुत ही फोकस्ड लाइव इंटरैक्टिव ट्रेनिंग दी जा रही है। सो अगर मेरे पास एक क्वेरी भी है कि क्या लैंग्मा स्कूल कोरियन लैंग्वेज सिखाता है, सो यस डेफिनेटली लैंग्मा स्कूल कोरियन लैंग्वेज सिखाता है। इनफैक्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। सो आप अपनी लैंग्वेज, जो भी हमारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उनसे फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं और फिर आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज के लिए जाना है फॉर। ओके, ऑलराइट। सो नेहा, जैसे हमने बात की इस बारे में, सो क्या यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट कोरियन सीखता है, क्या उसके लिए कोई स्कॉलरशिप, कोई और एकदम से नया कोई स्टूडेंट है 12th करके वहाँ आया है, सो क्या उसके लिए कोई स्कॉलरशिप का प्रोविजन है इन इंडिया और इन कोरिया? Yes, there is, of course, because of the culture centers and the good relationship we have to South Korea. So they provide the fully funded scholarship, which known as the KGSP scholarship. So us scholarship ke accordingly, like undergraduate, postgraduate, the PhD students, master students, they all can apply for the scholarship, और वो fully funded scholarship है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। इतना आपने 50% मार्क्स दिए तो आपको 50% ही scholarship, it's not like that. So it's just that you can apply through the embassy track and you can apply through the university tracks. आपके documents जो भी आपके होंगे, जो भी चीजें उसमें required होती हैं, और उसके बाद अगर वो totally clear है तो definitely they will provide you best colleges to you, like Seoul National University they have, बहुत famous है Seoul National University through the Asia, throughout the Asia। तो वहाँ पर आप लोग स्टडी कर सकते हो, और जो इंडिया के स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर ही रहे हैं वहाँ पर आप अपने जो भी स्टडी आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वहाँ जाकर आप स्कॉलरशिप को ग्रैब कर सकते हैं और उसमें आगे स्टडी कर सकते हैं। तो दे प्रोवाइड अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप टू यू। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, इज जस्ट नॉट दैट कि स्टूडेंट्स के लिए, मैं यहाँ पर ये पॉइंट ऐड करूंगी कि लाइक दे प्रोवाइड काइंड ऑफ अ टीचर ट्रेनिंग एज वेल, कि जो टीचर्स हैं who love to teach in another country, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को वो पढ़ाना चाहते हैं, तो that kind of a scholarship, that kind of a trainings are also available throughout the Korean culture
centers and the universities for in the South Korea, तो आप उनके लिए भी apply कर सकते हैं. They have lots of opportunities there. Yeah. So this is really a great opportunity for people who want to learn foreign languages and especially Korean because यहाँ पे आपको एक fully funded scholarship मिल रही है. Fully funded means from your accommodation to your fees to everything will be free of cost. That will be waived for you because it's all on the university, right? Yes. So yes, Yeah. that is a very good news for the language learners. Alright. So नेहा हम थोड़ा सा अभी जानना चाहेंगे आपसे that आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कोरियन लैंग्वेज की एंड ओवर द इयर्स आपने क्या डेवलपमेंट देखा है कोरियन लैंग्वेज में एंड हाउ ब्यूटीफुल डू यू फाइंड कोरियन लैंग्वेज टुडे? मेरी जर्नी आई विल से कि मैं टूरिस्ट गाइड थी इन द वेरी लाइक इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई वाज एक्स टूरिस्ट गाइड. तो मैंने उस टाइम पर बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई. एट फर्स्ट टाइम आई मेट विद द कोरियन पीपल ओवर देयर एज वेल. So I was the K-pop lover, K-drama lover as well. तो मुझे लगता है because मेरा इंटरेस्ट था ट्रैवलिज्म टूरिज्म, तो एज वी नो कि उसमें लैंग्वेज जो है वो एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, यू नो, फॉर द अर्निंग पर्पस एंड फॉर यू नो अनदर बेनिफिट्स, तो वो है ही. So at that time I was thinking about to learn the language and all. तो मैं वहाँ पर जब के ड्रामाज एंड म्यूजिक ये सब देखा करती थी, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट गो फॉर दिस लैंग्वेज व्हिच आई एम ऑलरेडी एक तरीके से वो लर्निंग ही थी मेरी, जो मैं ऑलरेडी उसको देख रही हूँ, सुन रही हूँ. तो आई स्टार्टेड टू लर्न कोरियन लैंग्वेज एंड देन when I get into the landmark, तो मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली. जितना भी मेरा ये लॉन्ग जर्नी रहा, जितनी भी मेरी गाइडिंग से एज अ ट्रेनर, एज कोरियन लैंग्वेज ट्रेनर, इसमें मैंने इतने प्लस पॉइंट ग्रैब किए. आई डोंट नो मैंने अब तक कितने स्टूडेंट्स को टीच किया है, जिसमें सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं है. इसमें यू नो द एमएनसी सेक्टर्स, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर देयर जिनको मैंने टीच किया है. एंड फॉर मी, फॉर माय करियर, इट्स बिकम अ वेरी प्लस एंड ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट. So Korean language के through मैंने इतनी opportunities ग्रैब की. I tried to get go to the South Korea as well in 2019. I visited the South Korea. मुझे इतना सारा opportunities उस दौरान मुझे मिला and thanks to the Langma as well कि मुझे कई सारे ऐसे platform भी मिले कि जहाँ पर मैं अपने आप को और भी ज्यादा like I'm talking about myself, तो मैं अपने आप को और भी बढ़ा सकी. तो I think जो भी students हैं जो यहाँ पर learn कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या फिर सिर्फ उनके बारे में भी बात करें जो स्टडी नहीं कर रहे हैं कोरियन लैंग्वेज, अगर वो किसी भी कहीं भी जगह से अगर कोरियन लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, तो वो हमेशा उनके लिए बेनिफिट रहेगी. फिर चाहे वो किसी भी वे में हो, आपकी ट्रैवल टूरिज्म में हो, आपका करियर, या आपका ट्रेनिंग में हो, या आप किसी बीपीओ केपीओ सेक्टर में हो, एमएनसीज में हो, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो, कुछ भी हो, तो आप के लिए, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज इस वक्त की इस एंटायर वर्ल्ड में 16th जो नंबर पे वो लैंग्वेज है जो बढ़ रही है, ग्रोइंग लैंग्वेज है, और इनकी 7th ग्रोइंग इकोनॉमी है. तो उसकी वजह से उनका जो मार्केटिंग है, जो उनका सारा कल्चर है, वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका है, और आने वाले टाइम में वो और भी बढ़ेगा. दैट्स फॉर श्योर. Okay, so we see all the bright possibilities, the bright opportunities out there in India as well as outside India. So नेहा, outside India की अगर बात करें तो क्या कुछ specific countries या कोई specific region है जहाँ पर कोरियन लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे prospects हैं? क्योंकि इंडिया तो आपने बिल्कुल हमें बताया है, बट क्या इंडिया से बाहर भी कुछ ऐसा है अगर हम कोरिया से अलग देखें? Yes, definitely. There are lots of countries, especially मैं यहाँ पर एशिया के अंदर जितनी भी countries हैं उनके नाम लूंगी कि थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, जापान, in all of these countries, यहाँ पर K-pop की वजह से, due to K-pop and the K-dramas, कोरियन लैंग्वेज को उन्होंने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से प्रमोट किया है, और जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आगे कोरियन लैंग्वेज को बढ़ा सके. तो उन्होंने अपनी कंपनीज, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को दूसरी कंट्रीज में प्रमोट किया है. सो इन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्दर कंट्रीज. तो उन कंट्रीज में स्पेशली जब लैंग्वेज कोई आती है तो दे वांट टू लर्न लैंग्वेज. आई हैव फ्यू एग्जांपल्स कि स्टूडेंट वांट्स टू लर्न लैंग्वेज बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड द ड्रामास, कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं. Yeah, so the people wants to learn that language because of that reason. तो इस वजह से
बाहर की कंट्रीज में भी ऐसा ही है, स्पेशली लाइक इफ आई टॉक अबाउट द थाईलैंड, द पीपल वांट्स टू लर्न Korean language because of the dramas and the music. They love BTS, very famous band in the South Korea. तो यहाँ पर ट्रेनिंग जो फील्ड है वो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगी आपके लिए कि आप वहां जब जाते हैं तो आप इंडिया के पर्सन, यू नो द कोरियन लैंग्वेज, यू गो इनटू द थाईलैंड, यू टीच द Thai people over there. You have the topic certificate. आप उनके थ्रू आप उनको पढ़ा रहे हैं, which is the great opportunity. So सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं, ऑफ कोर्स कि आप साउथ कोरिया में जाकर अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे. In the another countries as well, you go to the Thailand, you go to Vietnam, you go to Japan, and you teach the different languages. You teach the South Korean languages. तो इसके वजह से आप वहां पर जाकर आप उनको जब सिखाते हैं, लैंग्वेजेस को सिखाते हैं, तो ये ट्रेनिंग जो पॉइंट है हमारा वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है एज अ करियर. एंड ऑफ कोर्स टूरिज्म एंड ट्रैवलिज्म इज ऑलवेज देयर, क्योंकि आप कंट्री टू कंट्री जाते हो, द इंटरप्रेटिंग एंड द ट्रांसलेटिंग बिजनेस आर देयर. आपको जाना पड़ता है अनदर फॉर द कंट्रीज में टू एक्सप्लेन द थिंग्स, टू एक्सप्लेन द टॉक चैट्स एंड एवरीथिंग, द डॉक्यूमेंट्स, हर चीज. तो ये जो है वो हमेशा प्लस पॉइंट्स में ही रहेंगे न्यू अनदर कंट्रीज के अंदर. या yes. So it means that अगर आप इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज होंगे इन थाईलैंड, in Vietnam, in Japan, right? Exactly. So great. The learners should make a note of this, that you still have a lot of opportunities outside India as well, especially in Vietnam. Exactly. And I would like to point here to those exact things that we can follow. As Neha ma'am mentioned, we have Korean training, right? So you can become a trainer there. You can have a lot of opportunities regarding the translation and interpretation. And not just that, when it comes to Korean drama, K-pop culture, which is definitely most loved among youngsters. So वहाँ अगर आप देखें तो अपने इंटरेस्ट को आप करियर में ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू वेरियस ऑप्शंस. सबटाइटल बन सकते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं. So yes, there are a lot of opportunities. All right. So नेहा, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स के लिए? कोई टिप अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टार्ट करें, या कोई भी टिप आप उनको देना चाहेंगे अपनी जर्नी पे बेस्ड, बिल्कुल बिगिनर्स? यस, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, फॉर द बिगिनर्स, बिकॉज बिगिनर्स के लिए सारी चीज यही है कि उनको अगर कोई राइट गाइड मिले किसी भी रिगार्डिंग, कोई भी, जैसे कि हम देखते हैं छोटा बच्चा होता है, अगर उसका टीचर अच्छा नहीं है तो वो कभी नहीं सीख पाएगा. तो इन द लैंग्वेज फील्ड यू लर्निंग द न्यू थिंग. तो इसी की वजह से अगर आपके पास अगर कोई राइट गाइड है तो ऑब्वियसली आप उस चीज पर अच्छे से अपनी पकड़ कर पाएंगे और आगे उस पर परफॉर्म कर पाएंगे. सो फर्स्ट गाइड यू रिक्वायर्ड. सेकेंड, अगर आप बिगिनर हैं, आप लर्न कर रहे हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट को अपने करियर में डेवलप कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा, ड्रामाज एंड म्यूजिक को सुनकर, देखकर. तो आप जब कोई भी चीज सुनते हैं तो आप वर्ड्स को कैच करते हैं. लॉट्स ऑफ पीपल जिन्हें लैंग्वेज आती भी नहीं है, वो कुछ इतने जो पसंद करते हैं, क्रेज है उन BTS एंड द म्यूजिक, K-pop एंड ऑल, इनके पीछे, तो उनको फुल ऑन गानों की लिरिक्स याद होती है. दैट इज द पॉइंट आई विल से कि आप उन गानों के थ्रू अपनी लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हो. Try with the basic one. Of course, you start with the alphabets and the vowels and all these things. तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप कर सकते हो. तो इन सारी चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने लर्निंग कोरियन लैंग्वेज को. एंड जो मिडिल में है, तो मैं ऑलवेज ये पॉइंट रखती हूँ कि यस, म्यूजिक, ड्रामाज, वॉचिंग द न्यूज एंड ऑल, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को सिर्फ लिसनिंग में ही नहीं, स्पोकन में, रीडिंग, राइटिंग, चारों पार्ट्स में आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सो ये बेबी स्टेप्स थे जो नेहा ने अभी बताए कि आप अगर बिगिनर हैं, आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपके बेबी स्टेप्स ले सकते हैं. आप कोरियन ड्रामा, जो कि ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी बहुत उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप वो देखिए. आप म्यूजिक सुनिए, कोरियन लिरिक्स को फॉलो कीजिए. एंड अगर आप इस लैंग्वेज के एक्विजिशन में जाना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर्मल लर्निंग, सो बहुत सारे एक्सचेंजेस, कल्चरल एक्सचेंजेस ऑलरेडी इंडिया में हैं, या बहुत सारे सेंटर्स ऑलरेडी इंडिया में हैं जो आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज देंगे उस लैंग्वेज के कल्चर में डाइव करने के लिए.
राइट, जैसे कि नेहा ने अभी बताया हमें बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, सो मैं ऐड करना चाहूंगी। आई थिंक उन कल्चरल एक्सचेंजेस में कई तरीके के ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंड अदर कॉन्टेस्ट भी होते हैं जो इस लैंग्वेज लर्निंग को प्रमोट करते हैं, इफ आई एम राइट नेहा। इज इट सो? इज इट सो नेहा? यस, सो सेंटर्स हैं तो वो अपने कल्चर को प्रमोट कर, मेकअप एंड ऑल इन सब के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यस, सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग, आई थिंक नेटवर्क इशू। यस यस, सो वी जस्ट मेंशन दैट अगर कोई बेबी स्टेप्स लेके लैंग्वेज को यहाँ पे सीखना चाहता है तो सिर्फ एक फॉर्मल लर्निंग ही नहीं, वो इनफॉर्मल लर्निंग में भी डाइव कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं इन इंडिया जो आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज देंगे लैंग्वेज के कल्चर में डाइव करने के लिए, जो कि आई थिंक एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट होता है अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना है, स्पेशली सेकेंड लैंग्वेज, राइट। सो क्या नहीं, उन कल्चरल एक्सचेंजेस में कॉन्टेस्ट और इस तरीके के शोज कॉन्टेस्ट रेगुलरली होते हैं जो हमें लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प करते हैं। इज इट सो देयर? Yes, yes. They all are there. Like recently, beauty contest हुआ जो culture center की तरफ से था. Now they are doing the K-pop culture को promote करने के लिए वो यहाँ के students जो जिन्हें interest है K-pop singing, dancing, and they provide the taekwondo contest as well. तो वो वहाँ पर जाकर अपनी अपनी performance को show करते हैं and they get a chance to go to the South Korea. And now here I mentioned कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली बहुत फेमस होंगे जो के पॉप लवर है, उनको पता है देयर इज वन गर्ल प्रियंका एंड वन बॉय सिद्धार्थ। ये दो लोग हैं जो वहाँ के अब इस वक्त के पॉप के बैंड के अंदर जो 7 डिफरेंट एशियन कंट्रीज से एक बैंड बनाकर उन्होंने उसे एज अ के पॉप बैंड का नाम दिया है। तो वहाँ पर उस बैंड का वो हिस्सा है और वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से और भी ऐसे कई लोग हैं जो वहां पर जाके प्रमोट करते हैं द फूड, द इंडियन फूड। लॉट्स ऑफ बिजनेसमैन, उनकी काफी फेमस रेस्टोरेंट है, वो वहां पर बिजनेस कर रहे हैं काफी सालों से और यहाँ से अब वहां जाकर इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। So this shows that India and Korea share a very enduring ties between them, and we already have a lot of things already growing between us. So great, great. Yeah. All right. So all right. Thank you so much, Neha, for being on the show. अभी मैं एक question हमारे पास है कि लैंग्वेज लर्निंग को लेके, सो मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ मेंशन कर चुकी हूँ दैट यस, हम लैंग्वेज लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। आप लैंग्मा में आकर आप कॉल कीजिए एंड यू विल गेट फ्री काउंसलिंग फ्रॉम द लैंग्वेज स्पेशलिस्ट एंड आपको गाइड किया जाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज के लिए जाना चाहते हैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, करेक्ट प्रॉस्पेक्ट्स बताकर आपको उस लैंग्वेज के लिए गाइड किया जाएगा। All right. So now, as this live ends, I will appeal everyone. We at Langma School of Languages want to appeal everyone. Please stay home, stay safe. आप लोग अपना और अपने आसपास अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बिकॉज सिचुएशन डेफिनेटली बहुत वर्सन होती जा रही है। सो आप लोग किसी भी फॉर्म में अगर फाइनेंशियली, रिसोर्सेज के थ्रू, अपने नेटवर्क कनेक्शंस के थ्रू अगर नीडी की हेल्प कर सकते हैं, सो प्लीज डेफिनेटली आप वो कीजिए। And this is the time to help people. This is the time to take care of yourself and other people as well. And definitely for people who are safe, sound at home and want to upskill themselves, you can definitely learn a new language, and Langma is open for you. So all the best. So thank you everyone for being here on the show. Thank you, Neha. Thank you so much. See you guys. Thank you, Priya. Thank you so much. You're welcome. All right. Bye bye, Thank guys. you, guys. See you later with the new Bye, episode. guys.